السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 8 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے پارہ 1 سورہ البقرہ آیت 21 ٹو 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کی بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پچھلی کلاس میں ہم لوگوں کے کچھ اہم نکات یعنی اہم پوائنٹ تھے وہ رہ گئے تھے، تو آج اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو آیت نمبر 21 یہاں پر دعوت و تبلیغ کا طریقہ سکھایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا ہو، ایک بہترین امت ہو، تم امت بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی کو روکنے کے لیے۔ تو ہمارا اور آپ کے ذمے میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اس قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد دوسرا کام کیا ہے، عمل کرنا۔ پھر عمل کرنے کے بعد تیسرا کام کیا ہے، آپ کو وہ بات لوگوں کو پہنچانا، وہ تبلیغ کا کام لوگوں کو کرنا ہے۔ جو آپ کو علم ہوا اور آپ نے عمل کیا، پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا ہی سر چشمہ یعنی کہ سارے کے سارے پانی سے آپ اکیلے فائدہ اٹھا لیں۔ وہ سر چشمے اور وہ پانی سے آپ کو لوگوں کو بھی سیراب کرنا ہے۔ اس پانی یعنی وہی الہی کا جو پانی ہے، یعنی کہ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتیں ہیں قرآن کی، اس کو لوگوں کے پاس پہنچانا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی کہ سارے انسانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ آپ کسی بھی ایسے شخص کے پاس جیسے بیٹھے ہوں جو یہود ہے یا کرسچن ہے یا ہندو ہے یا مسلمان ہے صرف، یا زبانی کلامی جیسے مسلمان ہوتے ہیں، زبان سے تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے، تو ایسے شخص کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے بات پہنچانا ہے۔ ہم کو ایسے لوگوں کے پاس بات پہنچانا ہے کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، تیرے رب کی، یعنی کہ میرے رب کی نہیں، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ ربکم لفظ آیا ہے یعنی کہ تمہارے رب کی، یعنی میں اپنے رب کے پاس تمہیں نہیں بلاتا ہوں، تمہیں کس کے پاس بلاتا ہوں؟ تمہارے رب کے پاس کی عبادت کرو۔ تو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم اپنے ہی رب کی عبادت کرو۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یعنی کہ تم کو پیدا کیا ہی نہیں، صرف اس نے ان سب کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اس رب کی تم عبادت کرو۔ اب انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہے کون؟ خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ زبردست تبلیغ کی بات ہے، اور یہ قرآن کا پیغام سب کے پاس پہنچانا ہمارے اور آپ کے یعنی کہ امت مسلمہ کے کندھوں پر رکھا گیا ہے۔ اور وہ تاج جو بنی اسرائیل کے سر پہ تھا، وہ تاج اللہ تبارک تعالیٰ نے لے کر مسلمان امت مسلمہ کو پہنایا ہے۔ وہ جو کام ان کے کندھوں پہ رکھا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ ذمہ داری سونپی ہے۔ مسلمان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس وہ دنیا میں آئے، ایک بس بے روش، بے راہ، بے مقصد زندگی گزارے اور چلا جائے۔ مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا علم حاصل کرنا، اللہ کی پہچان کرنا، اپنے رسول کی پہچان کرنا، اور جو احکامات ملے ہیں پھر ان کو عمل کرنا، اور پھر جو پڑھا ہے اس کو عمل کیا ہے پھر ان کو اوروں تک بھی پہنچانا ہے۔ الذی، آیت 22، الذی، وہی جس نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، زمین کو بنایا تمہارے لیے بچھونا، تو زمین کو فرش بنایا، الارض فراشا، یعنی کہ زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف ہو رہا ہے۔ تو اللہ کون ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ ایک انسان جتنے بھی بھٹکے ہوئے ہیں وہ سنی سنائی باتوں پر فالو کرتے ہیں، ان کے باپ دادا سے سنا اور ان کے باپ دادا سے سنا اور ان کے باپ دادا سے سنا، اور بس آبا و اجداد کے دھرم کی وہ پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں، اتباع کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن، اپنا پہچان بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے کون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ اب لیکن ایسا جو شخص ہے جو اس زمین کی عبادت کرتا ہے، وہ دھرتی ماں کہہ کے اسی کی پوجا پاٹ کرتا ہے، تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ زمین کو بنانے والا خود زمین نہیں ہو سکتا ہے، یہ پیڑ پودے نہیں ہو سکتے ہیں، کہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے اس کا معبود، کہ اس کے بنا کر کے اس نے جو ہے 24,000 کی اسپیڈ سے اسپیس میں گھما رکھا ہے اس زمین کو۔
यानी कि जो हमारी ज़मीन है, हमारी जो धरती है, ये पूरे स्पेस में 24,000 की स्पीड से स्पेस में घूम रही है। सुभान अल्लाह। और ज़रा सी भी इसके अंदर जुम्बिश नहीं होती, यानी कि डिसबैलेंस नहीं होती ज़रा सी भी ज़मीन। अगर 1 इंच भी डिसबैलेंस हो जाती, तो ज़रा सोचिए फिर क्या होता? कितनी सटीक स्पीड से ये कम भी होती नहीं है, ना ज़रा भी ज़्यादा भी होती है और 24 घंटे ये चलती रहती है। और सूरज सूरज से अगर ज़रा सा भी अगर ये ज़मीन करीब हो जाए, तो कोई ज़िंदा नहीं रहता। इतना परफेक्ट निज़ाम तो चलाने वाला एक ही हस्ती और एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह तबारक तआला। सुभान अल्लाह। वस्समा बिना, और आसमान को छत बना दिया। तो उसने आसमान को छत बना दिया, यानी एक ओजोन लेयर होती है जो सूरज की हार्मफुल किरणों से इस इंसानों को, सारी दुनिया के इंसानों को और तमाम चीजों को, यानी कि पूरी दुनिया को बचा के महफूज करके रखती है, प्रोटेक्ट करती है। ये अल्लाह तबारक तआला ने ये सब चीजें बनाई। तो ये सब चीजें बनाने वाला एक जमीन को पूजने वाला नहीं हो सकता, यानी कि ये खुद एक धरती माँ अकेले ये सब काम नहीं कर सकती है, या कोई एक पेड़ अकेला ये सब काम नहीं कर सकता है, या कोई एक पहाड़ एक काम ये सब नहीं कर सकता है, या कोई एक हाथी, या कोई एक इंसान, या कोई एक पीर औलिया ये सब काम नहीं कर सकता है। ये तो काम करने वाला सिर्फ और सिर्फ अकेला अल्लाह तबारक तआला की जात है। आज साइंस हमें बताता है कि बादल से जब पानी गिरता है, अगर वो सीधा गिर जाए तो वो इंसान को फाड़ देगा, लेकिन हवा का एक जाल बिछता है और बारिश के पानी को धीरे धीरे लेकर आता है, यहाँ तक कि वो एक चींटी के ऊपर भी अगर वो गिरता है तो वो उसे मरने नहीं देता है, छोटी छोटी बूंद में वो डिवाइड कर दिया जाता है। क्या ये अपने आप हो रहा है? बारिश के पानी का प्रोसेस, यानी कि वाटर रिसाइकिल, यानी समुद्र का जो खारा पानी जो बादल लेके जाते हैं, और वो बादलों में जो पानी खारा कड़वा पानी जो जाता है, तो कौन है जो वो उस पानी को मीठा शहद बनाकर वापस नाजिल फरमाता है और बादलों में अब्जॉर्ब हो जाता है? तो कौन है उसको फिल्टर बना रहा है? कौन है जो उसको मीठा करके दे रहा है? कौन है जो उसके अंदर बरकतें नाजिल फरमा रहा है? तो बरकतों वाला पानी यहाँ कहा गया है। तो आप देखिए कि नहर के पानी की फसल उगाएं, और एक तरफ बारिश के पानी की फसल उगा के देखिए कि बारिश के पानी की फसल फसल क्या होती है, वो अलग ही किस्म की होती है। फिर वो पानी से हर किस्म के फल उगाता है। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, कि उसने उगाए उससे हर किस्म के फल, यानी कि अल्लाह तबारक तआला ने एक ही किस्म के पानी से तरह तरह के फल उगा दिए। यानी कि सिंपल सा सादा सा एक बिना कलर वाला पानी जब जमीन में अब्जॉर्ब होता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसके जरिए से तरह तरह के मुख्तलिफ जायकों के, मुख्तलिफ शक्लों के, मुख्तलिफ कलरों के, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ विटामिन वाले फल उगा देते हैं, जिसके अलग अलग जायके होते हैं, जिसके अलग अलग रंग होते हैं, जिसके अलग अलग विटामिन होते हैं। तो क्या ये सब अपने आप हो रहा है? वही तुम्हारा रब है। तो क्यों नहीं अल्लाह को पहचानते? जो जो ये पहचानते हैं, जो लोग इन पे गौर करते हैं, वो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के आगे सुपुर्द कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं अल्लाह तबारक तआला, इतनी अपनी नेमतें याद दिला के अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, फला तजलू लिल्लाहि अंदादा, कि ना तो मनाओ लिल्लाहि, अल्लाह के लिए कोई भी शरका, कोई भी शरीक। और तुम जानते तो हो, तुम्हें पता तो है। तो लिल्लाहि यहाँ पे अल्लाह का लफ्ज आया है, तो इस पूरी कायनात और पूरी पूरी जब से दुनिया बनी है, ये अल्लाह तबारक तआला का नाम एकदम यूनिक है, एकदम यूनिक। आज तक किसी ने किसी का भी नाम नहीं रखा। ये अल्लाह का अपना ज़ाती नाम है। और अल्लाह तबारक तआला का नाम जो अल्लाह जो लफ्ज़ है, ये अरबी का लफ्ज़ है। अल्लाह का मतलब होता है इलाह, जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका हमसर नहीं है। वो अकेला है, वो एक है, वो अपनी ज़ात में एक है, वो अपनी सिफ़ात में एक है, वो अपने हर हर काम में अकेला है, उसके साथ कोई भी उसका मददगार नहीं है। तो जो लोग भी गुमराह हैं, जो लोग भी भटके हुए हैं, तो क्या करें? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें। तो ये आयतें इस बात की दलील हैं कि अल्लाह एक है। अल्लाह सुब्हान तआला पाक है और ज़ात है और अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। वो अपने काम करने के लिए अकेला है। उसके साथ कोई फ़रिश्ते हों, ना हों, कोई इंसान हो, ना हो, अल्लाह सुब्हान तआला अकेला सब कुछ कर सकता है, और वो हय्युल कय्यूम है। हर इंसान फ़ना हो जाएगा, हर जिन्नात फ़ना हो जाएगा, हर फ़रिश्ते फ़ना हो जाएँगे, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मौत आ जाएगी। सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात है, वो बाकी रह जाएगी, क्योंकि अल्लाह, अल्लाह है, वही इलाह है। तो आयत नंबर 21 और 22 में तौहीद रुबूबियत भी आती है। तौहीद रुबूबियत होती क्या है? तौहीद रुबूबियत यानी कि हमारा खालिक, हमारा मालिक और हमारा मुदब्बिर, यानी हर चीज़ की प्लानिंग करने वाला, कब किसको क्या देना और क्या लेना है। तो इसमें ये सिफ़ात भी मौजूद है इन आयतों में। आयत देखिए, आयत नंबर 23, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन।
اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اور اگر تم سچے ہو۔ تو یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے۔ اور یہاں پہ جو لفظ آیا ہے اب دینا، یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، اور قرآن کریم میں 3 جگہ یہ لفظ آیا ہے صرف۔ اور یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نبی کے لیے، اپنے رسول کے لیے اب دینا لفظ لائے ہیں۔ تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسراف سے کام لیتے ہیں تو وہ یہ جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام انسان تھے، ایک عام بندے تھے، جن کے پاس نہ تو غیب کا علم تھا اور جن کے پاس ایسی کوئی بھی قوت نہیں تھی الا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا فرما دے۔ تو جب آپ اور ہم کسی غیر مسلم کے بیچ میں کام کرتے ہیں یا ایسے شخص کے پاس میں بات پہنچاتے ہیں اور یہ ساری باتیں اس کو بتاتے ہیں، تو وہ بات پہ اپنے سرنڈر تو کرتا ہے، وہ بات مان تو جاتا ہے کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے واقعی میں یہ سچ کہہ رہا ہے، واقعی میں میرا رب تو وہی ہے جو اس کا رب ہے، واقعی میں مجھے پیدا کرنے والا تو یہ پہاڑ، درخت، بیل بوٹے یا یہ جانور تو نہیں ہو سکتے، تو واقعی میں جو یہ کہہ رہا ہے یہ بات سچ ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کہیں اس نے یہ قرآن مجید خود تو نہیں لے آیا، یا کسی انسان کا تو لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کا شک اس آیت سے دور کر دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہے تم کو کوئی شک تو تم لے آؤ اس جیسی کوئی صورت جو ہم نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت تھی، آیت نمبر 2 الف لام میم کے بعد میں کیا آیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں شک ہوتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو اگر تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے تو تم اس کے جیسی کوئی صورت تو لے آؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا یہاں پہ ثابت کیا گیا ہے، یہ ثابت کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نبوت رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہے تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ یعنی اگر تمہارے یہ گمان میں ہے کہ یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہے تو تم بھی اس کے مقابلے میں اس طرح کی کوئی کتاب لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کی بھی چاہو اس سلسلے میں تم مدد لے لو، لیکن تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شہداءکم کے معنی ہے اعوانکم، یعنی اپنے مددگار بھی لے لو، یعنی کہ اتنا بڑا کام تم اکیلے نہیں کر سکتے تو تم اپنے مددگاروں کو بھی لے لو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجیے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کوئی ایسی کتاب لے آئیں تو اس جیسا کتاب نہیں لا سکیں گے، اور اگر وہ ایک دوسرے کے چاہے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ تو یہ چیلنج دیا ہے، یعنی کہ آپ سوچیں جنات کتنے پاورفل ہوتے ہیں نا، جناتوں کو بھی اور انسان بھی کسی سے کم نہیں ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے انسانوں نے سارے بڑے بڑے کام کر ڈالے اور اسپیڈ اور جو ہے جہاز اور ایسے ٹیکنیک بنا ڈالی، لیکن کیا ہے اس قرآن کو نہیں بنا سکتے، اور سارے کے سارے اگر انسان اور جنات مل بھی جائیں تب بھی یہ چیلنج کو نہیں پورا کر سکتے۔ تو یہ چیلنج عام تھا اور سب کے لیے آج بھی عام ہے، حالانکہ وہ تمام امتوں کی نسبت سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے۔ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں میں کئی جگہ یہ چیلنج کو کیا ہے، مگر اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، یعنی کہ مکہ والے بھی اس چیلنج کو نہ قبول کر سکے اور نہ بنی اسرائیل یعنی کہ نہ یہود اور نہ نصارہ اس کو قبول کر سکے، حالانکہ وہ قرآن کے شدید دشمن تھے اور دین اسلام سے انہیں شدید بغض تھا، مگر قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے وہ عاجز تھے اور قاصر تھے، یعنی کہ ان کے بس میں تھا ہی نہیں۔ اس لیے تو فرمایا ہے فَإِن لَّن تَفْعَلُوا، یعنی کہ اگر تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی کہ حرف لن مستقبل یعنی فیوچر میں ہمیشہ کے لیے نفی کے لیے آتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے منع کے لیے آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کے معنی یہی ہوں گے کہ تم کبھی بھی ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ اور یہ ایک دوسرا معجزہ ہے قرآن کا، قرآن نے بغیر کسی تردد اور خوف کے ایک ایسی پکی سچی بات قطعی خبر دے دی کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی وقت بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کے نزول کے زمانے سے لے کر آج تک بھی کوئی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور قرآن کا مقابلہ کوئی پاسبل بھی نہیں ہے، کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ یہ قرآن رب کریم کا کلام ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، تو مخلوق بلا اس کے جیسا کلام لانے سے کہاں سوال ہی نہیں اٹھتا نا، لا ہی نہیں سکتی ہے۔
और आप देखिए, चाहे दुनिया के पूरे साइंटिस्ट मिल जाएं, चाहे पूरी दुनिया के फिलोसफर मिल जाएं, चाहे पूरी दुनिया के लेखक राइटर मिल जाएं, चाहे पूरी दुनिया के ऑथर मिल जाए, शायर सब इकट्ठा हो जाए, तब भी इस कुरान जैसी कोई चीज नहीं बना सकते। कुरान तो एक ऐसी चीज है, यानी कि कुरान तो दूर, कुरान की एक सूरत भी नहीं, और एक सूरत तो दूर, कुरान की एक आयत भी नहीं बना सकते हैं। तो ये है कुरान करीम का चैलेंज, जिसके सामने आज बड़े बड़े लोग सरेंडर किए हुए हैं। वो कासिर हैं, वो आजिज हैं, क्योंकि कुरान करिश्मों से भरा पड़ा है। चाहे साइंटिफिक ले ले, चाहे साइंटिफिक मिरेकल ले ले, चाहे हिस्टोरिकल मिरेकल ले ले, और चाहे दुनिया और आखिरत के मिरेकल ले ले, चाहे नंबरों के मिरेकल ले ले, यानी कि मैथमेटिकल ले ले। तो हर चीजों से कुरान करीम करिश्मों से भरा है। हर चीज, जब ये इंसान उन चीजों से रूबरू होता है, तो एक इंसान, एक जो खालिस जो होता है, टेढ़पन से नहीं पढ़ने वाला, जो हिदायत के लिए पढ़ने वाला है, उसका सर सजदे में झुक जाता है अपने रब के आगे, जब वो कुरान करीम को समझ कर पढ़ता है। क्यों 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 होता है? क्योंकि दरअसल ये अल्लाह का कलाम है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला मौजज़ा है। आप देखें कि कितने मौजज़ात अंबिया को दिए गए, बेहद मौजज़ात अंबिया को दिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने असा और यदा बैदा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने मुर्दों को जिंदा करते थे वो, और मिट्टी से परिंदे में बनाकर फूंक मारते थे तो वो जिंदा हो जाता था। अंधे और बर्स और कोढ़ी को वो फूंक मार के अच्छा कर देते थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और हर तरह से जो भी अंबिया आए, अल्लाह ताला ने सबको मौजज़ात दिए। लेकिन आपके पास या हमारे पास किसी का कोई मौजज़ा है? कोई हम किसी का मौजज़ा देख सकते हैं? ये हाथ में लेकर उसको अपने सीने से लगा सकते हैं, या आंखों से उसको देख सकते हैं? नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला ये कुरान एक मौजज़ा है। हर बार जब भी आयतें पढ़ता है एक इंसान, वो बोर नहीं हो सकता है। एक मामूली सी एक किताब, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा ऑथर एक किताब लिख दे, तो एक इंसान उसको एक बार पढ़ेगा, लेकिन दोबारा पढ़ेगा तो वो बोर हो जाता है। लेकिन कुरान ऐसी किताब है, ऐसी करिश्माई किताब है, जिसको बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, लेकिन कभी बोर नहीं हो सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को ऐसे मौजज़ात दिए गए जिन्हें देख कर लोग उन पर ईमान लाए, और मुझे जो मौजज़ा अता किया गया है वही है, यानी कुरान है, जो अल्लाह ताला ने मेरी तरफ नाजिल फरमाई है। मुझे उम्मीद है कि रोज़े क़यामत मेरे पैरवी करने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। बुखारी 4981 इसका नंबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें और आपको इस मौजज़े को अता फरमाया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें और आपको इस कुरान करीम से जोड़े रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए, आयत नंबर 24, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। और ये काम कर सकोगे, और हरगिज़ तुम नहीं ये कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। फत्तकुन नारल्लती वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। तो पत्थरों से मुराद क्या है? तो उस आग से डरने को कहा जा रहा है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, यानी वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो इसमें वकूद के माने हैं, इससे मुराद ईंधन है जिससे आग जलाई जाती है। तो जिससे आग जलाई जाती है, फ्यूल, उसके लिए वकूद अल्फाज आता है। और वल हिजारा यानी पत्थर, तो पत्थरों से यहाँ मुराद है गंधक के बड़े बड़े सियाह और सख्त बदबूदार पत्थर मुराद है, जो गर्म होने के बाद दीगर तमाम पत्थरों की निस्बत उनकी हरारत सबसे ज्यादा और तेज होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें और आपको उन सब चीजों से महफूज रखे। ये भी कहा गया है कि उन पत्थरों से मुराद बुत होंगे और मुजस्समों के होंगे, जो पत्थरों के जिनकी पूजा पाठ आज दुनिया में की जाती है या उस जमाने में भी की जाती रही। तो हर वो पत्थर, हर वो बुत, हर वो मुजस्समा उस जहन्नुम में डाल दिया जाएगा जिनकी इबादत अल्लाह तबारक तआला के साथ की जाती रही। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं सूरह अंबिया आयत नंबर 98 में, इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दुनिल्लाहि हसाबकुम जहन्नमा। बेशक तुम और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, वो दोज़ख का ईंधन होंगे। तो ये इस बात की दलील है कि जिनकी इबादत की जा रही है, वो सब के सब जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे, झोंक दिए जाएंगे। और जो लोग इबादत कर भी रहे हैं, उनको भी डाल दिया जाएगा। यानी जो इंसान होते हैं, आप देखिए आयत में क्या आया है कि इंसान और पत्थर होंगे उसका ईंधन। इंसान और पत्थर, तो आप पत्थर, आपको पता चल गया कि पत्थरों में ऐसे पत्थर होते हैं जो अपने आप जलने लगते हैं, एक पेट्रोल की तरह वो काम करते हैं। लेकिन इंसान के अंदर भी क्या है? एक तरह से फ्यूल होता है, जो फैट होता है, जो चर्बी होती है इंसान की, अगर इस पे भी जब आग पड़ती है तो वो भी जलने लगती है। आप सोचे कि ऐसे लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक ठहराया,
ऐसा नहीं कि अल्लाह को मानते नहीं थे, अल्लाह को मानते थे, ईश्वर को मानते थे, अपने रब को, अपने गॉड को इबादत तो करते थे, लेकिन साथ में औरों को भी शरीक ठहराते थे और लोगों को भी अल्लाह ताला के साथ शरीक करते थे। तो ऐसे लोग जहन्नुम का फ्यूल होंगे, ईंधन होंगे, यानी कि उन्हीं के ज़रिए से जहन्नुम को दहकाया जाएगा। अल्लाहू अकबर! बहुत डराने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको और हमारी सारी जनरेशन को और हम आपकी सारी जनरेशन को शिर्क बिल्लाह से बचा ले। शिर्क बिल्लाह से हिफ़ाज़त फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, यानी उस आग, जो आग अल्लाह के रसूल, उस आग को अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करने वालों के लिए तैयार किया गया है। यानी जो आग तैयार की गई है, ऐसे लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक ठहराते थे, जिन्होंने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की, जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला अल्लाह के रसूल का इनकार किया, जिन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, जिन्होंने एक अल्लाह की इबादत का इनकार किया, जो पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए उस चीज़ का उन्होंने इनकार किया, जिन्होंने कुरान करीम का इनकार किया, जिन्होंने कहा ये कुरान क्या है, इसको आपने लिख लिया है, जिन्होंने कहा ये कुरान क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी बातें हैं, पहलों की असातिरुल अव्वलीन यानी पहलों की कहानियां हैं, जिन्होंने कहा कि आप जादूगर हैं, जिन्होंने कहा आप जो है आप मजनू हैं, आप दीवाने हैं, और उनके जैसे जो भी सिफात जिन जिन लोगों में होगी, उन सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन सब के लिए और इद्दतिल काफिरीन की तैयार की गई है, काफिरों के लिए वो आग। आयत 25, वबशिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरति रिज़्क़न क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिह व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जो ईमान लाए हैं और उन्होंने अच्छे अच्छे अमल किए हैं, यकीनन उनके लिए तो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें इसमें से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ये तो वही है जो हमें इससे पहले दिया गया था, और उनको इससे मिलते जुलते फल दिए जाएंगे और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उन बागों में हमेशा रहेंगे। नेक मोमिनों की यहाँ पे बात हो रही है। तो अल्लाह तबारक ताला ने उस अज़ाब और सज़ा का ज़िक्र किया जो उसने अपने दुश्मन यानी बदनसीब काफ़िरों के लिए तैयार कर रखी थी। जो ऐसे नाफरमान लोगों थे जिनके लिए अल्लाह तबारक ताला ने जहन्नुम तैयार कर रखी थी, यानी कि जहन्नुम ने अपने रब से शिकायत की कि चुनाचे, यानी कि जब जहन्नुम थी, जहन्नुम ने अपने रब से शिकायत की, उसने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, मैं अपने ही बाज़ हिस्सों मेरे बाज़ हिस्सों ने मेरे बाज़ हिस्सों को खा लिया। तो अल्लाह ताला ने उसे सर्दी के मौसम में और एक गर्मी के मौसम में 2 सांसें लेने की इजाज़त दे दी। सही बुखारी 3260 इसका नंबर है। तो जहन्नुम अल्लाह तबारक तआला ने बनाई और इतनी गर्म बनाई कि वो सांस नहीं ले पाती, और वो अपने अंदर ही अंदर उसके बाज़ हिस्से एक दूसरे को खा गए। तो इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने जहन्नुम की सांस लेने के लिए उसको साल भर में 2 बार वो सांस लेती है। जब वो सांस अंदर लेती है तो ठंड पड़ती है, जब वो सांस बाहर छोड़ती है तो गर्मी पड़ती है। तो कितनी गर्म वो जहन्नुम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको और हमारे वालिदैन और सारे मोमिन और सारे मोमिनात को उस जहन्नुम से बचाए। तो अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पे बदनसीब काफिरों के लिए जब जहन्नुम का जिक्र किया, काफिरों के लिए जो बनाई है अल्लाह तबारक तआला ने, तो अब उसके बाद अपने दोस्त और सादतमंद मोमिनों का तज़किरा शुरू कर दिया जिन्होंने आमल सालिह से अपने ईमान की तस्दीक की। कुरान का उसलूब ही यही है कि जहाँ ईमान का जिक्र होता है तो उसके बाद कुफ्र का भी जिक्र रहता है। अगर कुफ्र का ज़िक्र होता है तो उसके बाद ईमान का ज़िक्र करता है। इसी तरह खुशनसीबों के बाद बदनसीबों का भी और बदनसीबों के बाद खुशनसीबों का भी ज़िक्र आता है, ताकि एक चीज़ के साथ उसके अपोज़िट का भी ज़िक्र कर दिया जाए। चुनांचे काफिरों की सज़ा का ज़िक्र करने के बाद अब मोमिनों की जज़ा का भी ज़िक्र किया जा रहा है। तो अल्लाह तबारक तआला, कुरान करीम बहुत खूबसूरत कुरान है, कलाम है। जहाँ कहीं भी जहन्नुम की बात आती है तो उसके जस्ट फ़ौरन बाद जो है जन्नत की भी बात अल्लाह तबारक तआला ले आते हैं। तो यहाँ पे अब जन्नत की बात है। पीछे जहन्नुम की बातें थी, अब यहाँ पर जन्नत की बात है। तो जहन्नुम से बचना है और डरना है और वहाँ से जाने की हमें सोचना भी नहीं है, और फिर कोशिशें करनी है, जद्दोजहद करनी है, किसके लिए? जन्नत के लिए। और उन सब के लिए, कोशिशें करने वालों के लिए खुशखबरी है। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और जो लोग ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहें, उनको खुशखबरी सुना दीजिए कि उनके लिए नियामतों के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत के बागों की तारीफ करते हुए फरमाया है कि उनके नीचे, यानी उनके दरख्तों और बाला खानों के नीचे नहरें बह रही हैं। हदीस में है कि जन्नत में नहरें बह रही हैं मगर उनमें खाइयां नहीं हैं।
इसी तरह हदीस में है कि कौसर के बारे में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके दोनों किनारे किनारे सच्चे मोतियों के कुबे हैं। मैंने कहा, ए जिब्रील, ये क्या है? अर्ज की, यही वो कौसर है जिससे अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे और उसकी खुशबू या उसकी मिठास खालिस मुश्क है। सही बुखारी 6581। और जन्नत की कंकड़ियां मोतियां और हैबर हैं। अल्लाह ताला से दुआ हम करते हैं कि अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मोमिनों के लिए खुशखबरी है, उन सब के लिए खुशखबरी है, जन्नत की बशारतें हैं, जो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? ईमान लाए। और दूसरा काम किया उन्होंने, ईमान लाना ज़रूरी है, उसके बाद दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि वह आमिलुस सालिहात, अच्छे-अच्छे काम भी करने हैं। तो इंसान एक जो टेंशन फ्री हो जाता है, वो ये सोचता है कि हम ईमान तो ले आए हैं, हम तौहीद पे तो डट गए हैं, हमने हज भी कर लिया, हमने नमाज़ें भी पढ़ ली, तो वो आपने फ़राइज़ अदा किए हैं, वो आप ईमान ले आए हैं, लेकिन व आमिलुस सालिहात भी करने हैं। लोगों के साथ हुस्न सलूक भी करना है, लोगों के साथ खैर ख्वाही का भी काम करना है। कोई एक अच्छी काम, कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी आदत अपनी बना लेनी है, जिसके ज़रिए से लोगों को फ़ायदे पहुँचाने वाले बन जाए, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाले बन जाए। एक तौहीद परस्त और एक हाजी और एक नमाज़ी, एक रोज़ेदार, तो अगर वालिदैन का इताअतगुज़ार नहीं है, अगर अपने क़राबतदारों के साथ हुस्न सलूक करने वाला नहीं है, तो अगर वो लोगों के साथ हुकूकुल इबाद अदा करने वाला नहीं है, तो क्या है? वो कामयाब नहीं है। कामयाबी दरअसल चाहते हैं तो आमिलुस सालिहात भी करना है, वालिदैन के साथ एहसान का दर्जा करना है, भाई-बहन के साथ एहसान का दर्जा करना है, सास-ससुर के साथ भी अच्छे अखलाक से पेश आना है, उनके साथ भी एहसान का दर्जा करना है। क्योंकि वो शौहर की जन्नत है और शौहर की जन्नत क्या है? उसके वालिदैन हैं। तो सास-ससुर के भी उनके साथ अच्छे से हुस्न सलूक करना है, उनके साथ अच्छा एहसान का मामला करना है। फिर दे फिर उनके जो सास-ससुर हैं, फिर उनके बच्चे यानी कि देवर और नंद, उनके साथ भी एहसान का रवैया करना है। अपने पड़ोसियों के साथ एहसान का रवैया करना है, अपने बच्चों के साथ एहसान का रवैया करना है। तो एहसान एहसान होता क्या है? किसी को उसके हक से ज़्यादा देना क्या है दरअसल? वो एहसान कहलाता है। लोगों के उसके हुकूक से ज़्यादा देना है, और अगर यही नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके हुकूक तो अदा कर दें पूरे। तो उनके हुकूक अदा करते। तो ये सब वामिल सालिहात में आता है। खूब-खूब नेकियों में दौड़ लगाना। हर नेकी काम में सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ये सब सारी चीज़ें वामिल सालिहात में आता है। तब उनके लिए क्या होगा? और वामिल सालिहात में होता है वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। और तब उनके लिए क्या होगा कि वो जन्नात है उनके लिए, जिसके नीचे नहरें जारी हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। और जब वो कभी कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरति रिज़्क़न, जब उनको उसमें से कोई फल ला के दिया जाएगा, तो वो ये कहेंगे कि हमने तो अभी-अभी इस जैसा फल खाया है। तो जन्नत के फल जब वो खाएँगे, तो जब उन्हें उनमें से किसी तरह का कोई फ्रूट ला के दिया जाएगा, कोई फल ला के दिया जाएगा, तो वो ये कहेंगे कि ये तो वही है, जो हमको पहले दिया गया था। ये खूबसूरत वहाँ पे कहा जाता है, इब्न कसीर से रिवायत किया है कि जन्नत की घास ज़ाफ़रान है, उसके टीले कस्तूरी के होंगे, और छोटे-छोटे बच्चे, खूबसूरत बच्चे जन्नतियों के पास फल लेकर आएँगे, जिन्हें वो खाएँगे, फिर उसी तरह से फल लेकर आएँगे, और वो जन्नती कहेंगे, यानी कि एक बार फल लेकर आएँगे, फिर वो जब दोबारा फल लेकर आएँगे, तब वो जन्नती कहेंगे कि ये तो वही फल है जो अभी-अभी तुम लाए थे। तो वो बच्चे कहेंगे कि ये फल नहीं है, ये तो दूसरे फल है। ये दूसरे तरह के फल हैं, जो रंग और ज़ायक़े में मुख्तलिफ है। इसके मायने यही बताए हैं। और वऊती वऊतु बिही मुतशाबिह, कि जन्नत के फल अगरचे एक दूसरे के मुताशाबा तो होंगे, मगर उनका ज़ायक़ा मुख्तलिफ होगा। और अहले जन्नत की बीवियाँ कैसी होंगी? पाक होंगी। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा। तो जन्नत वालों की, जन्नतों की जो बीवियाँ होंगी, जितनी जन्नत जन्नत में जाने वाले लोगों की जो बीवियाँ होंगी, वो पाक साफ होंगी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अहले जन्नत की जो बीवियाँ होंगी, वो गंदगी से और नापाकी से पाक होंगी। यानी उनके अंदर जो है ना, हैज़, निफास, खून, थूक वगैरह जो गंदगी एक इंसान के अंदर होती है, ये सब सारी चीज़ों से वो पाक साफ होंगी। वहुम फ़ीहा खालिदून, जहाँ वो मौत का खौफ ना, उनको ज़िंदगी ख़त्म होने का खौफ होगा, यानी कि वो हमेशा उसमें, उस जन्नतों में रहते रहेंगे। आज हम और आपके पास अगर कोई ऐसी जगह पे हम जाते भी हैं, तो डर क्या होता है कि बस थोड़े दिन हैं, फिर हम वापस अपनी ज़िंदगी में लौट जाएँगे। कोई घूमने-फिरने जाता है, कोई अच्छी हिल स्टेशन या पहाड़ी पे जाता है, तो सोचता है कि बस 1 हफ़्ता है, बस 1 महीना है, बस 2 महीने, फिर वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाएँगे ना। तो ये एक सोच होती है, लेकिन जब जन्नत अल्लाह तबारक तआला देंगे, तो वो कैसी होगी? वो अबदी होगी, वो हमेशगी की होगी। वहुम फ़ीहा खालिदून, और वो बेशक वो जन्नतों में हमेशा रहेंगे। तो जहाँ ना उनको मौत का खौफ होगा, ना उनको अपनी ज़िंदगी का ख़त्म हो जाने का खौफ होगा, क्योंकि वो ज़िंदगी हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी होगी, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी होगी।
और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी उनको वहाँ पे नसीब होगी, और वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, और ना वो कभी वहाँ पे बीमार होंगे, ना किसी भी तरह का उनको दर्द और तकलीफ़ और गम होगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, हम और आप और हम सब जितने भी यहाँ मौजूद हैं, और हम सब के वालिदैन और हम सब के औलाद और हम सब के जितने भी ख़ानदान वाले हैं, सब के सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 26। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फ़अम्मा الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين। बेशक अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता कि वो कोई भी ऐसी मिसाल बयान करे, मच्छर की हो या उससे भी बढ़कर, यानी कि उससे भी हकीर या अजीम हो। फिर जो लोग ईमान लाए हैं तो वो जानते हैं कि ये बेशक हक है, उनके रब की तरफ से हक है। लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया, वो कहते हैं कि ऐसी मिसाल पेश करने से अल्लाह की मुराद क्या है। अल्लाह तो बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, और वो उन नाफरमानों के सिवाय किसी को गुमराह नहीं करता। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला नहीं शर्माता कि वो किसी मच्छर की मिसाल दे, या उससे भी कोई छोटी हकीर चीज़ होती उसकी भी मिसाल देते। तो जब अल्लाह तबारक तआला ने अपनी किताब में मक्खी और मकड़ी का ज़िक्र किया, तो जो गुमराह इख्तियार करने वाले लोग थे, यानी गुमराही का रास्ता इख्तियार करने वाले लोग थे, उनके ज़िक्र करने से अल्लाह ताला की मतलब क्या मुराद है? तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने इस आयत को नाज़िल फरमाया। तो लोगों ने एतराज़ात किए थे। जब अल्लाह तबारक तआला ने मच्छर की मिसाल दी, और उससे पहले की जो मिसालें आई थी, मकड़ी की आई है एक जगह पे कुरान करीम में, और एक जगह पे मक्खी की भी मिसाल आई है। तो लोगों ने ऐतराज़ किए कि अल्लाह तबारक तआला तो इनका कैसा है कि एक छोटी-छोटी चीज़ों का मिसाल देता है। तो जो अहले कुफ़्र करने वाले थे, यानी कि कुफ़्र करने वाले जो लोग थे, उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दी कि इनके अल्लाह तो कैसी-कैसी मिसाल लाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों की मिसाल लाते हैं। तो उनके जवाब में अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पे ये मच्छर की मिसाल की बात लाए और आयत भी लाए। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है बऊदतन आया है। बऊदतन अरबिक में फीमेल मच्छर के लिए इस्तेमाल होता है। तो इससे मुराद है फीमेल मच्छर है। आज साइंस हमें बताती है कि मच्छर में सिर्फ फीमेल मच्छर है जो इंसान को काटता है। और आप सोचे कि 1450 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी आयतें नाजिल हुई थी, और आज पता चलता है ये सब चीज़ें। तो कितनी गहराई अगर इंसान एक सोचने लगे, तो बिल्कुल इंसान तदब्बुर करके बिल्कुल आजिज़ हो जाए, कि इंसान अपने सर सरेंडर कर दे। और आज से जैसे आज आप सोचिए कि अगर हमसे कोई कहे कि 1450 साल बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो कोई बता सकता है क्या? कोई कह सकता है कि आने वाले वक़्त में क्या होगा? आज हमसे और आपसे या आज के साइंटिस्ट से कोई कहते कि आप 50 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, तो बस उनकी बातें क्या होती हैं, एक ज़न होती है, एक बात होती है जो कभी नहीं सच होती, जो उनकी बस एक कहानी जैसी, एक स्टोरी जैसी वो क्रिएट कर देते हैं। लेकिन 1450 साल पहले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें नाज़िल हुई थी, आज वो सारी आयतें साइंटिस्ट के अगर देखें तो वो सब सच होती हैं। जब साइंटिस्टों ने उसकी रिसर्चेज़ की हैं, रिसर्च करके जो चीज़ें सामने आती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सच होती हैं। तो किसने बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाला कुरान है, जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है। ला रैब फ़ीह है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। तो हमारा इस पे यकीन से भी बढ़ के यकीन होना चाहिए कि ये कलाम, ये कुरान अल्लाह का है। तो जब यकीन हो जाएगा, तब इंसान इसके अहकामात को ज़रूर फ़ॉलो करेगा, इसकी बातों को ज़रूर मानेगा। जो यकीन नहीं करते हैं, वो इसकी बातों को, इसके हुक्मों को और इसकी बात और अपने रब की बात को नहीं मानते हैं। तो दुनिया की भी मिसाल क्या है? अबू ज़र राज़ी ने रबिया बिन अनस से इस आयत के बारे में रवायत किया है कि उसमें अल्लाह ताला ने दुनिया की मिसाल बयान करते हुए फरमाया कि मच्छर उस वक़्त तक ज़िंदा रहता है जब वो भूखा होता है, और जब वो सैराब हो जाता है तो मर जाता है। यानी कि एक मादा मच्छर जो होती है, इतनी ज़्यादा जब वो अपने अंदर एक ब्लड इतना ज़्यादा लेके पेट उसका भर जाता है, तो वो मर जाती है, अक्सर मर जाती है। तो उन लोगों का भी यही हाल है, जो कुफ़्र और निफ़ाक़ करने वाले जो लोग हैं। जिनकी अल्लाह ने कुरान मजीद में ये मिसाल भी बयान फरमाई है। जब दुनिया से खूब सैराब हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें पकड़ लेता है। फिर उन्हें उसकी तायीद में इस आयत की करीम की तिलावत भी फरमाई, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शैइन, सूरह अनाम आयत नंबर 44। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उनको की गई थी, उसको फरामोश कर दिया, यानी छोड़ दिया, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, हर अज़ाब के दरवाजे खोल दिए।
تو यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत खूबसूरत मिसाल लाए हैं और जो मिसाल है वो एक मच्छर की है। तो आप देखिए आज तरह-तरह से लोग बातें बताते हैं, रिसर्चर्स बताती हैं कि जो एक मच्छर होता है, तो मच्छर के पता नहीं कई हज़ार तो मतलब कई सौ तो उसकी आँखें हैं। इतने से छोटा-सा एक मच्छर, उसकी कई सौ आँखें हैं। छोटे-सा जो उसका सर होता है, कई सौ उसकी आँखें हैं और कई उसके सर हैं और कई उसके पर हैं। और फिर उसके पास एक ऐसी सिरिंज होती है कि जब वो किसी इंसान के ऊपर बैठता है, तो वो सिरिंज लगाता है पहले कि ताकि इंसान की जो बॉडी होती है, वो सुन्न हो जाती है। जब मच्छर इसीलिए बैठता है तो इंसान को खुद पता नहीं होता है कि उसके ऊपर कोई बैठा है, कोई काट भी रहा है। लेकिन जब वो काट चुकता है, तब इंसान की बॉडी जो है काम करती है, तब उसको पता चलता है कि हाँ, कि मुझे किसी ने काटा है। और फिर जब वो सिरिंज लगाता है अपनी, उसके बाद फिर वो एक डंक लगाता है, फिर वो डंक के ज़रिए से सारा जितना भी उसको अपना इंसान की बॉडी से खून चाहिए होता है, फिर वो खून ले लेता है और फिर वो उड़ जाता है। उसके बाद फिर इंसान को इचिंग महसूस होती है, तकलीफ महसूस होती है। लेकिन जब तक एक मच्छर बॉडी पे बैठता है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती है। उसको उसके पास सुन्न करने वाली एक सिरिंज भी होती है। कितनी बड़ी हैरत की बात है ना। और अल्लाह तबारक तआला ने 1400 साल पहले, साढ़े 1400 साल पहले कुरान करीम में इसकी मिसाल दी है ना, तो आप लोग भी ज़रूर इसके बारे में, एक मच्छर के बारे में आप लोग भी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा कि क्या-क्या काम करता है, क्या-क्या चीज़ें हैं एक मादा मच्छर के अंदर, है ना? तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता है, कोई चीज़ से नहीं शर्माता है। अगर कोई मिसाल ऐसी हो जो बयान करे, चाहे मच्छर की हो या उससे भी कमतर होती, तो जिन्होंने ईमान लाए और वो जानते हैं कि ये तो हक है, ये तो बात सच है और उनके रब की तरफ से है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईमान नहीं लाते हैं और वो कुफ्र करते हैं और वो कहते हैं कि फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाह, कि इन मिसालों से अल्लाह का क्या इरादा है? क्या अल्लाह ताला चाहते हैं? वो तो बहुत लोगों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है मुराद ये है कि अल्लाह ताला हिदायत देता है और अल्लाह ताला गुमराह करता है। तो हिदायत भी उनको मिलती है जो हिदायत के तलबगार होते हैं। क्या एक ऐसे शख्स को हिदायत नहीं मिल सकती जो हिदायत का तलबगार नहीं है। तो हिदायत उसको मिलती है जो हिदायत मांगता है, जो हिदायत ललक ललक के मांगता है अल्लाह से। जो हिदायत नहीं मांगता, जो मांग नहीं रहा है, उसको हिदायत नहीं मिलती। इंसान को हिदायत उसी को मिलती है जो अल्लाह से हिदायत मांगते हैं, जिसके दिल में तड़प होती है, ललक होती है कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की, अपने रब को पहचानने की, तो उन लोगों को हिदायत मिलती है। हिदायत के सर चश्मे से हर कोई जो है फैज़याब नहीं हो जाता है। हर इंसान नहीं इससे फ़ायदा उठा लेता है। जो माँगता है, जो आता है इस रास्ते पे, हिदायत उसको मिलती है। जो भाग जाता है, जो नहीं माँगता, जो दुनिया के इस ज़िंदगी को अपना मकसद बनाता है, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देता है। और ऐसे काफ़िरों के लिए क्या है? बस गुमराही है। और वो इस तरह से बहुत से लोग इस तरह गुमराह किए जाते हैं। वमा युदिल्लु बिही कसीरा, और वो बहुतों को हिदायत देता है और वो उनसे नाफरमानों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। यानी कि एक जो कजीब मन से, जो एक टेढ़ दिल से और एक इस कुरान करीम में जो कमियाँ निकालने के लिए जब कुरान पढ़ता है, तो वो हो सकता है और अक्सर होता है कि कुरान पढ़ने से वो लोग क्या हो जाते हैं? वो गुमराह हो जाते हैं। कभी भी कुरान करीम को इसलिए ना पढ़ें कि हम इसमें नुक्स निकाल रहे हैं, हम इसमें कमी निकाल रहे हैं। जब भी कुरान करीम उठाएँ, तो ये सोच के उठाएँ कि अल्लाह हमें इसके ज़रिए से हिदायत दे दे। क्योंकि इस कुरान करीम से पढ़ के बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं और बहुत से लोग क्या होते हैं? हिदायत याफ्ता भी हो जाते हैं। ये दुनिया की वाहिद एक ऐसी किताब है जिसके ज़रिए से इंसान जन्नत तक जा सकता है और ये एक ऐसी किताब है जिसके ज़रिए से इंसान गुमराह भी हो सकता है। तो सबसे पहले दुआ भी इसीलिए माँगी गई ना कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सूरह फातिहा में इसीलिए पढ़ा गया और यही माँगा भी गया कि अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखा दे, मेरी उसकी तरफ रहनुमाई कर दे। जो सिरात मुस्तकीम पे चल गया और हिदायत के रास्ते पे चल गया, तो उसका रास्ता क्या है? जन्नत तक जाता है। और जो उस रास्ते से हट गया, तो बाकी जितने भी रास्ते हैं, वो सारे रास्ते कैसे हैं? गुमराह करने वाले रास्ते हैं। तो जिसने इस कुरान को छोड़ा, जिसने इस हक को छोड़ा, जिसने इस दुनिया के ज़रिए इस दुनिया को पाने के लिए इस कुरान करीम को ना पढ़ा, इसको छोड़ दिया, इसको तर्क कर दिया, तो यकीन जानिए वो सारे के सारे लोग क्या हैं? सब के सब गुमराह हो जाते हैं। क्योंकि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की दुश्मन है, जो इंसान की दुश्मन है। सबसे पहला तो ये चकाचौंध कर देने वाली दुनिया है, दूसरा उसका अपना नफ्स है, तीसरा खुद शैतान यानी इब्लीस है, जिसके बारे में हम लोग कल इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे की आयतें भी आ रही हैं, आदम और इब्लीस का वाक़या। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए फिर हमें इन तीनों चीज़ों से बच के रहना है। दुनिया की चकाचौंध में खो करके हमें कुरान को तर्क नहीं करना है। अपने नफ्स, दूसरा जो अपना नफ्स होता है इंसान का, नफ्स अम्मारा की बात नहीं मानना है। नफ्स जो है लव्वामा की बात माननी है। और नफ्स लव्वामा की बात मानते-मानते इंसान नफ्स मुतमइन्ना इख्तियार करता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आदम अलैहिस्सलाम, जो हमारे अब्बा यानी कि हम सब के जो इंसानों के बाप यानी आदम अलैहिस्सलाम, उनसे उस टाइम से दुश्मनी सारे इंसानों से चली आ रही है। आज भी हम सब के पीछे लगा हुआ है और आखिरी सांस तक वो पीछे रहेगा।
تو یہ تینوں چیزیں کیا ہے، ایک طرح سے دشمن ہے انسان کی۔ تو ان سب تینوں سے ہمیں لڑنے کے لیے ایک ہمیں زبردست جو چیز چاہیے ہے وہ اللہ کی جو ہے نا ہدایت چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن کریم ہماری زبردست ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کب اور کیا کیا کرنا ہے، اس کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن کریم۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے آج کا ہمارا لیسن مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔